स्वागत है व्यूअर्स अपने खानसा से हॉर्नबिल टीवी नागमिस युमचुंगर जाटप्रा चुंगकामन्यो मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल मना होमोय नागालैंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निफ्यू रियोप्रा शमोटो दे नुतुन डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DPRO ऑफिस DYRO ऑफिस DPO प्लानिंग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चरल ऑफिस निशना पासा एसोसिएट ऑफिस इनॉग्रेट करी दिशे जाकाली जनवरी 16 दिन दे इतु लगा इनॉग्रेशन प्रा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा फ्रेमवर्क निमिदे बिशी मदद होबो कोइगना जनाई दिशे CM प्रा इनॉग्रल प्रोग्राम दे कथा कुरिया होमोय डिपार्टमेंटल इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स और लोकल कम्युनिटी खान के बिशी थैंक्स दिशे इतु एकलान होइगना डिस्ट्रिक्ट निमिदे ताई खान सोप्रा इतु प्रोजेक्ट दे सपोर्ट और मिलिगेना काम कुरिया गने शमातोर इतिया तक सबसे नतुन डिस्ट्रिक्ट आसे और इतु लगा डेवलपमेंट प्रा मानु और एडमिनिस्ट्रेशन माजोदे काम करिबोले गाने भाल होबो कोइगना चीफ मिनिस्टर प्रा कुशे इतु होमोय चीफ मिनिस्टर प्रा शमातोर मानु खान गे इतु ऑफिस खान दु निजर लगा रिस्पांसिबिलिटी लोइगेना भाल प्रा चुलाई जाबोले रिक्वेस्ट करिशे और चुंगकामन्यो फेस्टिवल नाम सब मानुगे खुशी जनाइशे नागालैंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निफ्यू रियोप्रा आज कुशी की दिमापुर एयरपोर्ट असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर प्रा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगा माटी ऑक्युपाइड करिगिना थका हता नाइ कुइले असम राइफल्स खान नतुन एयरपोर्ट दिबो लागि कुशी ऑनगोइंग नागा पॉलिटिकल इशू खान लगा ओपर आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी मीटिंग करिसे कुते पुलिस कॉम्प्लेक्स चुमो के दिमादे थाकिसे और इतु लगा डिटेल्स सब रिपोर्ट आधना नकुदे complex rhododendron hall chumukidi mate aigena se itu saw 2026 ula homoy this time itu political affairs committee chief minister dr nifiro laga chairmanship niche de itia members of parliament kan ayate rhododendron hall te aigena itu political affairs committee kan itu ongoing naga political issue opor takan aji discuss kurigena jabule laga ase itu ekla noina itu sal NDPP और NPF merger हुआ पीछे इतु एक first meeting होबोले लगा से और इतु ओपोरते इतु ongoing नागा political issue ओपोर बीसी साल इतु discuss करेगिना ओपोर इतु साल की discuss करेगिना तान एक resolution नोले भी solution उलाबोना नहीं इतु तागन meeting उला पीछे मान details meeting minutes भी मान हुदीगिना अपने के जाने बोले कोशिश करेबो आई So can we just ask you about a lot of agendas were discussed today, but can you tell us a bit about what came about with the ARTC Armed Forces occupation of airport land and also the railway station? We had decided to take it up with the ministry and then find out what the alternatives. And if they will not move out from there, then they have to give us a new airport. Yeah, met the minister. Yes, about the PAC meeting, can you give us a little gist of what came about of today's meeting? The multiple meetings that PAC No, we have not adopted any resolution. We have discussed on the issue of Naga political problem. So this year we should initiate and try our best, put our best to come out with some result. That was the decision. And we should try to create Naga common platform of Nagaland, because all the NGOs are fragmented, and all the organizations speak in their own way about Naga issue. Yes. So we should have only one apex body that who will talk about Naga issue, so that they represent the Naga people by and large. We elected members represent the people, but we are elected under the Constitution of India. So NGOs should have a common platform so that every mouthpiece can be shut down. Only one organization can speak about Naga issue. That is what we have discussed. Okay, sir. But no resolution was adopted. Okay, now sir, Nagaland itia more than 33 Naga political groups hoise. Yes, takan nijor form hoise. Will be sir PAC do political affairs committee do bishi serious tagise. Will be itia laga matters de sir 33 Naga political groups hoise. Itu laga concerning noina itia do Naga civil societies ekta apex body bunabo lage koi ase sir. Apuni koi sabte. So 33 Naga political groups to form green jado government bhi all of responsibilities lobo lagi no hai sir. No, that is why government is requesting Naga tribal Ho people to come together, and then we should impress upon all the factions to come together under one umbrella, so that solution will be only one. There cannot be 2-3 solutions. 33 faction, 33 solution will not be there. So
our objective is to bring the Naga civil society together, and all the underground group also should create one common platform. Through them, Naga solution can be discussed. I have never come across. Koima High Court construction. That is actually not within me, but their housing is different. So that is looked after by the housing engineers, not the R&B. So is there any I have come across in the newspaper. Yes. It's an old case. Yes, So things are going on. Let the real thing happen. Who should be responsible? Sir, MS Hexet Syndicate. Of course, that is mentioned two contractor firms' name, but Public when money. it is within the legal proceedings, how can I cannot say anything about that. Let the fact be find out, and who is responsible should be responsible. It's not it. Yes, sir. We cannot because this is just going on now. They might have read it legally with the permission, but so my only point is that let the fact be find out, and we take action accordingly. The law will advise us what we should do. Okay. This is the Political Affairs Committee meeting today, chaired by Honorable CM. And we have all shared our opinion. And we have come to a conclusion that today we will not pass any resolution. But we have come to a common understanding that this year, 2026, we will very, very vigorously pursue as an active facilitator on the resolution of the Naga political issue. As an elected member, as a member of the Political Affairs Committee, we will vigorously pursue because the responsibility is being trusted on us. So therefore, we will try our best. That's the only thing. তো এইটো আছে আজি পলিটিকেল এফেয়াৰ্স কমিটি কান মিটিং লৈ কিনা তাকান কি ডিসকাস কৰিছে মন শুনি লৈছে আৰু একটা মন জানিব পাৰা লাগাটো আজি একো ৰিজলিউশনস তো বানাব পাৰা নাই হলি বি ডিপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ টিআৰ জেলাং পৰা কোৱা হিচাপতে এইটো একটা নাগা পলিটিকেল ইস্যু মেটাৰ এইটো প্ৰবলেম সলভ কৰিব নিমিতে একটা নাগা কমন প্লেটফৰ্ম তো বানাই কিনা সিভিল সোসাইটি অৰ্গানাইজেশ্যন বি একটা হ'বলৈ লাগাবি তা কৈ কিনা আছে আৰু এইটো ওপৰতে এতিয়া অনগোয়িং ল্যান্ড এনক্ৰচমেন্ট ইস্যু এইটো ডিমাপুৰ এয়াৰপৰ্টে যায় থকা Assam Rifles Khan ke itu Chief Minister pra khwa hisab tu itu laga issue tu ministry logo take up kurikina ase aro judi Assam Rifles Khan pra itu tan vacate kura nai kole ta notun airport laga ma TV dibo lagi koina itu ekta jankari digina ase itu alag related issue laga opportunity mon latest update ani bole koshish kuri takibo aji nimre mane ase moi adonari with camera person Pankaj Gurung for Hornbill TV Kohimate nutun Guwahati High Court Complex banabole laga funds to thik pra na chulai koikina LH Korea opor Enforcement Directorate pra Dimapur de Special PMLA Court age charge sheet file kurishe kude ED pra janai dishe ki itu laga investigation to June 17 2018 de CBI's Imphal Anti-Corruption Branch laga FIR lodge Korea de initiate lua laga ase ED hisab de Dimapur Sub Zonal Office pra December 29 2025 de Avityo Sekhose Messrs Hexet Syndicate, Tefusatio Rio, Halele Rio, Aro VB Letio, Gets Khan Opor, charge sheet file Krishe, Prevention of Money Laundering Act 2022 laga provision under the Kinaga Hoigina Special Court pra itu Mamla laga cognizance to January 12, 2026 delusion. ED pra investigation kurigina ja homoi PWD official Khan pra itu mamla opor poisa bishi chulai di gina ase aro duita retaining wall nimide contractor Avityo Sekhose ge rupees 80.25 lakh nishna payment kurigina ase kuigina jankari paishe investigation pra aro bi jani paishe ki itu laga case de Nagaland PWD official Khan bishi involved thaki ase Jammu aro Kashmir Student Association laga national convener Nasir Khwahamani Taipra media logo de kotha korea homoin janai dishe ki Ministry of External Affairs laga hisab te 3000 nishna Indian student itia Iran de puri ase tade pra 2000 nishna do Kashmir Valley laga ase associate pra sarkar logo kotha korea ase tade thakya student khan वापस ठीक तक आने बोले निमिदे कोई गिना था कुछ और ये भी जानकारी आ रही है कि फिलहाल कई लोगों को ऑपरेशन के जरिए इंडिया लाया जा रहा है
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने बच्चे आपके संपर्क में थे ईरान में? क्या MBBS की पढ़ाई के लिए वो लोग गए थे, कुछ और भी कोर्सेज में एडमिशन लेते? पूरी जानकारी। देखिए सर, जैसा कि आपको पता है कि आज MEA ने औपचारिक तौर से कहा कि 9000 के आसपास इंडियन सिटीजन जो है वो ईरान के अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं। जहां तक छात्रों की संख्या का ताल्लुक है, 3000 के आसपास भारतीय छात्र वहां अलग अलग शहरों में, जिसमें तेहरान, मशहद, शिराज, अरक और बाकी अन्य जगहों पे जो है पढ़ाई करते हैं। सब लोग जो इसमें है वो मेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई करते हैं, MBBS की पढ़ाई करते हैं, और इन 3000 में से 2000 कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों से है, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर से है, साउदर्न कश्मीर से या नॉर्थ कश्मीर से है। ईरान में गुज़श्ता कई सालों से ये पढ़ाई करते हैं और बड़ी संख्या चूंकि इनमें है, तो इनके परिवार काफी ज्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे, डिस्ट्रेस में थे, एंक्शस थे, और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप भारत सरकार के साथ मामला टेकअप करें। भारत सरकार जब भी अनप्रेसिडेंट टाइम्स होते हैं, चाहे बात ईरान इसराइल की हो, चाहे बात यूक्रेन वाला वार की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, या बाकी अलग अलग अनप्रेसिडेंट टाइम्स क्राइसिस होते हैं, तो भारत सरकार के साथ हम लगातार हमारी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, लाइजनिंग रहती है इन चीजों के ऊपर। तो हमेशा भारत सरकार, खुसूसन MEA और प्रधानमंत्री ऑफिस जो है हमेशा टोज पे रहता है, और जगह जगह पे जहां पे हमारी स्टूडेंट्स की दिक्कत हो जाती है उन पे वो हमेशा पेश आते हैं। तो इस बार भी हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था, देश के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखा था, कहा कि आप इमीडिएटली इंटरवन करें इस मामले को, और जो हमारे बच्चे अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, उनके परिवार परेशान है, उनके परिवार डिस्ट्रेस में है, उनको जल्द ही भारत इवैक्यूएट लाया जाए, क्योंकि इनके जो परेशान है परिवार, उनको सहायक रिलीफ मिल जाए। तो भारत सरकार ने औपचारिक रूप से हमें कल इन्फॉर्म किया कि भारत सरकार एक बाज़ाब्ता तौर अपने स्टूडेंट्स को उनके लिए एक बाज़ाब्ता तौर ऑपरेशन जो है लॉन्च कर रही है, क्योंकि इसमें काफी सारे पेरेंट्स का जो है कहना था कि इनको कहा गया कि आप अपने ही विदाउट सेफ्टी सिक्योरिटी उनको फराहम नहीं किया गया है और किया जा रहा है, जिसको लेके जो है हमने मिनिस्ट्री से मामला टेकअप किया था, और बाज़ाब्ता तौर उन्होंने कहा कि सुरक्षा में उनकी कोई चूक नहीं होगी। सेफ्टी सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट तक जाने के लिए रास्ते हैं उसको जो है एम्बेसी और MEA ऑफिशियल टोज पे हैं, और वो उसको जो है मैनेज करेंगे। हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट में कहा था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप अपनी शहरियों की जो सुरक्षा है उसको यकीनी बनाए। तो भारत सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर कम्युनिकेशन आया, उन्होंने वहां रिस्पॉन्स किया और कहा कि जो छात्रों की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और आज औपचारिक रूप से हमें कहा गया कि इवैक्यूएशन प्रोसेस अंडर वे है। हालांकि आज सुबह 8 बजे वहां से फ्लाइट एक निकलने वाली थी, लेकिन उन्होंने फिर वो जो सारा प्रोसेस है वो फिलहाल के तौर पे होल्ड रखा है। वो इस वजह से होल्ड पे रखा गया है क्योंकि वहां जो एयरपोर्ट उसमें जो है क्लोज थे, एयर स्पेस क्लोज थी, उसको लेकर रात देर गए, उसको खोला गया। और भारत सरकार और MEA ने कहा कि हम ईरानियन काउंटर पार्ट से मामला हमने टेकअप किया है, हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे जो है कई सारी सिटीज में जो है हालात जो है नरम हो रहे हैं, हालात स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि हालात इन कई दिनों से जो है खराब थे, प्रोटेस्ट थे, डिमॉन्स्ट्रेशन था, क्रैकडाउन था, जिसको कि लेके हमारे जो पेरेंट्स कश्मीर में हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो फिलहाल के तौर पे ऑपरेशन होल्ड पे रखा गया है, और जो बच्चे आना चाहते हैं अपना टिकट जिन्होंने खुद बुक किया है उसके लिए भी भारत सरकार उनको मदद कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, ट्रैवल एयरपोर्ट तक उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और बाकी जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए MEA और बाकी एम्बेसी के ऑफिशियल्स जो है टोज पे है, और सारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आज के तौर पे जो है आज शाम रात देर गए 12:30 बजे एक फ्लाइट आ रही है जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट आ रही है। वो पहले तेहरान से यहाँ शारजा एयरपोर्ट जाएगी, शारजा से फिर दिल्ली एयरपोर्ट रात के 12:10 पे आएगी। दूसरी फ्लाइट महान एयरवेज के थ्रू आ रही है, एयरलाइंस के थ्रू आ रही है, वो डायरेक्टली दिल्ली एयरपोर्ट पे आएगी, वो रात के 2:30 बजे के आसपास होगी। कुल मिला के 2 फ्लाइट्स हैं, और इन 2 फ्लाइट्स में पिलग्रिम्स भी हैं और इसमें जो है हमारे स्टूडेंट भी मौजूद हैं। लगातार हो रहा था, तो आपसे कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कनेक्शन आप लोगों का हो पा रहा था? इसमें 2 तरीके कनेक्शन हमारे पास जिनके साथ हम स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में थे। एक वो स्टूडेंट्स जो अलग अलग शहरों में थे जहां पे हालात खराब हो गए थे। इसमें एक ग्रुप वो था जो इराक बॉर्डर के पास जाता था हर 2 दिन बाद, जो वहां कोऑर्डिनेट कर पाता था इंटरनेट के जरिए से, थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता था, तो वो हमसे जो है इंटरनेट के जरिए से जो है कनेक्ट थे। क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का वहां चैप्टर है, उसके जो अधिकारी है वो हमारे साथ फोन पे टच में थे, जो कि वहां MEA और एम्बेसी के ऑफिशियल्स थे, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे इवैक्यूएशन के हवाले से। और जो यहाँ स्टूडेंट्स के कंसर्न थे, पेरेंट्स के कंसर्न थे, वो उनको हम बताते थे, वो उधर ब्रीफ करते थे। इधर हम MEA ऑफिशियल्स के साथ दिल्ली में जो है संपर्क बनाए थे। तो कहने का गरज था तो इसमें जो है इसमें कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन था, ताकि किसी भी लेवल की चूक ना हो, ताकि सुरक्षा जो है, जो सेफ्टी हमारे छात्रों की है, हमारी पिलग्रिम्स की है, हमारे जो काम करने वाले की थे, उसको यकीनी बनाया जाए। स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है पिलग्रिम्स में?
जाहिर सी बात है इसमें स्टूडेंट्स की संख्या कश्मीर से 2000 है, कुल भारत से जो है 3000 के आसपास है। उसके बाद भी कुछ आपकी बातचीत हुई, क्योंकि 9000 के करीब बताए जा रहे लोग हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल, आज भी 3 बार दिन में बात होगी, जो अलग अलग शहरों में अरक हैं, जिसमें शिराज है, मशहद है, तेहरान है, जो है आने वाले दिनों में जो है आएंगे, और उसके लिए भारत सरकार उनका इवैक्यूएशन ऑपरेशन को लेके वो सिचुएशन को एनालाइज कर रही है। ईरानियन गवर्नमेंट से जो है कोऑर्डिनेट कर रही है कि किस प्रकार से हम जो है इवैक्यूएट करेंगे स्टूडेंट्स को। फिलहाल सारे स्टूडेंट सेफ हैं। अलबत्ता 2 दिन पहले कुछ दिक्कत हो गया था, कुछ प्रोटेस्टर्स ने कश्मीर घाटी के 2 स्टूडेंट्स को असॉल्ट किया था, और MEA की तरफ से फिर वहां मामला टेकअप किया गया था। सारे स्टूडेंट स्टेबल हैं, सुरक्षा की यकीन दहानी की गई है, और कोई भी स्टूडेंट चाहे वो भारतीय हो चाहे पर्टिकुलर एक रीजन से कश्मीर से हो, सारे स्टेबल हैं, सारे जो हैं सिक्योर हैं, कोई भी इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है उनको। ইৰাণ দে এতিয়া বেছি ঝামেলা যাই থাকে সময় তাতে থাকে ইণ্ডিয়ান মানুহখানগে वापस ঠিক ঠাক আনিবলৈ কাৰণে চৰ্চা যাই থাকে। যোৱাকালি ৰাতি দিল্লীতে 2টা কমাৰ্চিয়েল ফ্লাইটছ লেণ্ড কৰিছে। ইণ্ডিয়ান চৰকাৰৰ পৰা এতিয়া বি কাম কৰি থাকি আছে, আৰু ইৰানিয়ান চৰকাৰৰ লগত বি কথা কৰি আছে। ইণ্ডিয়ান মানুহ কোনখান এতিয়া বি ইৰাণ দে আছে वापस আনিবলৈ নিমিতে। वापस আহিয়া মানুহখান পৰা চৰকাৰকে বেছি ধন্যবাদ দিছে, আৰু তাইখান কাম নিমিতে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে। তেহৰান দে থাকে ইণ্ডিয়া লগা এম্বেচিৰ পৰা এডভাইজৰী ইছ্যু কৰিছে, আৰু ইণ্ডিয়ান পিলগ্ৰিমছ टूरिस्ट स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन खान के ईरान पर वापस पठाबले निमित्ते कॉन्टेक्ट करी आसित। फरवा काज़मी मैम, काफ़ी लोग परेशान हैं, ईरान में फंसे हुए हैं, करीब 9000 इंडियन नेशनल्स अभी भी वहाँ पर हैं, जिनमें से आज 2 फ्लाइट्स आ रही हैं। आपके कौन रिलेटिव वहाँ पर कितने दिनों से परेशान हैं? मम्मी गई हुई हैं, लाइक 1 वीक हो गया था, बात भी नहीं हुई थी हमारी। 3 दिन से तो बात नहीं हुई है हमारी, बट आ रहे हैं ये तो आज कंफर्म हो गया था कि फ्लाइट पे हैं। हाँ, ऑब्वियसली परेशान थे कि बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सब सही है। इंशाल्लाह आज वो लोग वापस आ रही हैं। मेरी आंटी आ रही हैं साथ में उनके। हाँ, बस जब कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तब आप लोगों ने एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश भाई ने की थी, कोशिश की थी, लेकिन बात हुई नहीं थी शायद। हाँ, अभी सब कुछ नॉर्मल? जी सब कुछ नॉर्मल है। वगैरह क्या उन्हें खुद टिकट बुक करनी पड़ी है? नहीं, वो सब हुआ हुआ था हमारा। अच्छा, आपका पहले से हुआ हुआ था। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हुआ है ये कुछ भी, आपने खुद ही करा? जी। कोई ऐसा तो नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद प्राइस बढ़ गए हो फ्लाइट के? आई हैव नो आइडिया, सॉरी। या थैंक यू सो मच। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे, तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। हाँ जी। आपने कहा कि वहाँ की सिचुएशन खराब थी, तो क्या आप लोग कहाँ रह रहे थे? तो हमारे यहाँ एक स्टील प्लांट है मेरे को, तो उन्होंने मेरे को भेजा था यहाँ से। तो नहीं, जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ ईरान में, तो वहाँ पे हालत खराब थी? हाँ, वहाँ पे मतलब कंपनी के अंदर तो माहौल ठीक था, कंपनी से बाहर जैसे शहर हैं, गाँव में बहुत बुरा हाल था। हाँ जी। वीडियोस वगैरह भी आप लोग ने? नहीं, अभी नहीं है, वीडियोस वगैरह नहीं है। हम तो कंपनी में खुद ही अंदर दुबके हुए थे। वहाँ के जो लोकल लोग थे वही हमको आके बताते थे, खबरें देते थे कि ऐसा हो रहा है। भारत सरकार का किस तरह से बहुत अच्छा सहयोग उनका। हाँ जी, मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। हाँ जी सर, बहुत हेल्प हो रहा है। बहुत हेल्प हुई? बिल्कुल बहुत हेल्प हो रहा है। आपका नाम? अर्श जहरा। आप कहाँ पे थी, क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS। कौन से कॉलेज में? शिराज मेडिकल। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि जो US है उन्होंने धमकी दी थी कि हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया नहीं। बहुत सारे अभी प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे वहाँ पर? हाँ, सुनने में आ रहा था, बट हमने देखा नहीं कुछ नहीं देखा। मेरा नाम शबीर हुसैन है, मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ। कश्मीर के बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, आप लोग कितना परेशान हुए जब परिवार से कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, वो तो ठीक बात है, परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है,
आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट दो पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुंभ में हुए थे। हाँ जी, भारत सरकार ने कुछ मदद करी, एम्बेसी से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की? आने की बड़ी कोशिश की है भारत सरकार ने, बड़ी अच्छी कोशिश की है। स्टूडेंट्स को वापस बुलाया, हम जियारत के लिए गए थे, पिलग्रिम थे हम, तो बड़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। हमारा इंटरनेशनल कॉलिंग भी 3 दिन में रिज्यूम हुआ। फिर अभी इंटरनेट सुनने में आया है कि अब इंटरनेट तेहरान में 2 या 3 दिन में रिज्यूम हो जाएगा। हाँ जी। मोहम्मद दिलशाद नाम है। दिलशाद भाई कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से हैं। जी। कितने दिनों से परेशान थे वहाँ? जी हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। 2 हफ्ते से परेशान? जी 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। आप लोगों को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, सेफ थे हम लोग। बाकी का निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। इंटरनेट वगैरह बंद हुआ तो? हाँ, इंटरनेट इसके लिए फैमिली को कुछ बता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। इंडिया में लोग परेशान हुए आप लोग? जी अम्मी हमारे पापा रो रहे थे वहाँ पे। रो रहे थे आप? सही। कुछ वीडियोस वगैरह कॉल भी नहीं कर पा रहे? नहीं, कुछ मैसेज भी नहीं जा रहा था, नॉर्मल मैसेज भी नहीं जा रहा था हम लोग का, कॉल सब कुछ। मदद कर रही थी, एम्बेसी से कांटेक्ट हो पाया? एम्बेसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था, बट हमारे जो इंचार्ज, हमारे जो सुपरवाइजर थे उन लोगों से इंचार्ज हुआ था कांटेक्ट, तो वो लोगों ने टिकट्स बुक किए थे, बट वो वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे, वो भी कैंसिल हो गया, फ्लाइट भी कैंसिल हो जा रहे थे क्योंकि इंटरनेट नहीं था। तो फिर फ्लाइट कैसा चलता, वो लोग के पास लिस्ट नहीं आ रहा था पैसेंजर का। ये फ्लाइट भी आपने खुद ही बुक की है, सरकार ने मदद करी? नहीं, ये तो हमारे ऑफिस वालों ने किया है। ऑफिस वालों ने? सरकार की तरफ से कोई? नहीं, सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एम्बेसी को ट्राई किया था, एम्बेसी से कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वो जहाँ तेहरान में था ना इंडियन एम्बेसी, तो वहाँ पे वो लफड़ा चल रहे थे, तो हम लोग को जाने के लिए मना कर रहे थे वहाँ पे। ओके। तो ये था रीजन। सिचुएशन क्या नॉर्मल होती जा रही है? हाँ, अभी तो नॉर्मल हो गई, अभी नॉर्मल हो गई है। এতিয়া কাৰণে ইমানহে আলোকবৰ খান গাড়ী চাই থাকিব হুনবিল টিভি।